we are going to do today is sum number 6. This is in the ratio 2:1. So the profit sharing ratio is 2:1. With the help of the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. So trading and account is to be prepared for the year ended 31st March 2019. Trial balance as on 31st March 2019. First we are reading the debit side of the trial balance. Stock as on 1/4/2018. Now this is opening stock. Opening stock will go to trading account debit side. So this is the debit side that I am reading. So I am not writing debit side. Trading account debit में जाएगा. Patents. Asset. Will go to assets. It is an intangible asset. It will go to assets. So sundry debtors asset. Stock of stationery. Now this is something new. This is stock of stationery and appearing in the trial balance, dear students. So stock of stationery जब भी trial balance में रहेगा, so we will be considering this as an opening stock of stationery. और opening stock of stationery अगर कोई expenses हुआ है stationery का, तो उसको हम add करेंगे. अगर नहीं है, तो हम लोग separately उसको add करके दिखा देंगे. So let us see what to do as far as stock of stationery is concerned. हम लोग लास्ट में उसका एंट्री करते हैं, ठीक है. उसके बाद ट्रेडमार्क्स भी आपका एसेट्स है. देन बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन योर वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, लाइटिंग एंड हीटिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस. ये लास्ट टाइम आल्सो वी हैव सीन. ट्रेड एक्सपेंसेस देखते समय अपने को क्या देखना है? डू वी हैव एनी जनरल एक्सपेंसेस? कोई जनरल एक्सपेंसेस है क्या सम में? नहीं है ना. There is no expenses, and if there is no general expenses, then trade expenses will go to profit and loss account. Exactly. अगर general expenses होता था, तो trade expenses किधर जाता था? Trading account. This is what you have to remember. Then sales return will be deducted from sales, so less from sales. So I'm going to put a tick mark on sales. Then we have land and building. Land and building is again asset for us. Furniture is asset. Cash at bank asset. Investment assets. Drawing will be partners. Let us see current account बनाना है क्या? नहीं. Partner capital ही है. So we have to just draw partners capital account. So partners capital account में जाएगा. Then bad debts. Bad debts will be profit and loss account. And then purchases will be trading account. I hope this is clear. So this is the debit side. Then let's move on to the credit side. Credit side में सबसे पहला we have capital. Capital will be partners capital account. और partners capital account में credit में ही जाएगा because credit side वाले item है तो credit में ही जाएगा. Then other loans. This is nothing but credit side में आया हुआ loan है. Credit side में आया हुआ loan है तो वो liability में जाएगा. So this is loan taken. तो ये liability में जाएगा. Then first time we have reserve fund for the first time. Reserve fund will also be liability. Any reserve fund is a liability for your firm. Then comes sundry creditors. Creditors is again liability. Bills payable liability. Purchase return will be less from purchases. And we are putting a tick mark on purchases. Purchases last में है. So tick कर रहा हूँ. Then RDD is old RDD. So this is nothing but your old RDD. और old RDD को हम क्या करते हैं? Less करते हैं. Bad debt में से bad debts भी इधर है. So I'm putting a tick mark on bad debts. Then you have sales. Sales will be trading account credit side and interest credit side में आया है तो वो P&L में आएगा और P&L में भी वो credit में आएगा because interest is appearing on the credit side. I hope this much is clear. So this are where the trial items from the trial balance will be appearing. Now let's move on to the adjustments part. Adjustments में what they have given? They have given stock on 31st March 2019 is valued at cost price 12,000. So the cost price of the stock is 12,000 or market price is 17,000. Now as we have seen, we will be taking cost price or market price, whichever is cost price. Cost price. Cost price. और market price whichever is कौन सा लेते हैं हम लोग? Less वाला. Less वाला लेते हैं ना? Lower वाला. Lower. Whichever is lower. So whichever is lower and which is lower in this sum? Cost price. So we'll be taking cost price for purpose of adjustment. Is that clear? और हमें stock का double effects पता है. Trading account credit side and balance sheet aside. Clear?
further. Our customer, Mr. Shekhar, failed to pay dues of rupees 800. So शेखर जो पर्सन है वो हमारा कस्टमर है. एक कस्टमर मतलब कौन? सो कस्टमर मतलब याद रखना डेटर है. कस्टमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटर. क्लियर? याद रखना कस्टमर ये वर्ड आया तो कस्टमर का मतलब डेटर होता है, ये याद रखना. तो मिस्टर शेखर ये हमारा डेटर है. डेटर मतलब उससे हमें पैसा लेना था लेकिन फेल टू पे इज ड्यू. ए फेल टू पे इज ड्यू को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जब भी डेटर ड्यू पे कर नहीं पाता तो वी कॉल इट एज Bad debts. bad debts. बराबर है. So this is nothing but your new bad debt. So this is new bad debt, dear students. I hope this is clear. So if any customer is unable to pay his due, so that becomes bad debts for you. That would turn out to be bad debts for you. I hope this is clear. तो न्यू बैड डेट है और न्यू बैड डेट का डबल इफेक्ट हमें पता है. न्यू बैड डेट को हम क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स करेंगे और ऐड टू बैड डेट्स करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. सो आई एम पुटिंग अ टिक मार्क ऑन बैड डेट्स. बैड डेट्स में मैं ऐड कर रहा है तो उसमें टिक मार्क डाल रहा हूं और डेटर से लेस करना है. सो लेट्स सी वेयर द डेटर्स आर. डेटर्स, सेंडर डेटर्स. सो सेंडर डेटर्स को एक टिक मार्क करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 1/8 of the patents are to be written off. 1/8 of the patents are to be written off. Now dear sir, written off का मतलब याद रखना, written off is nothing but like depreciation we have to provide. तो जब भी intangible assets आएगा तो वो लोग डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करेंगे. वो लोग या तो बोलेंगे एमोर्टाइज करो या तो बोलेंगे राइट ऑफ करो. दिस आर द टू वर्ड्स दैट दे यूज. तो यहाँ पे बोला राइट ऑफ करो. सो राइट ऑफ इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन दैट वी हैव टू गिव. हमको वहां से कम करना है और कितना कम करना है? तो 1/8 बोला है. 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ. तो 1/8 कितना आता है दैट विल बी सीइंग. लेकिन हमें इफेक्ट जो पास करना है डेप्रिसिएशन का, और डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट आपको पता है. लेस फ्रॉम पेटेंट्स करोगे और पीएनएल के डेबिट में लोगे. इज दैट क्लियर? सो मैं अकॉर्डिंगली पेटेंट्स को टिक मार्क कर रहा हूं. सो हियर आर द पेटेंट्स. आई एम पुटिंग अ टिक मार्क ऑन दिस. हमको पेटेंट से लेस करना है, उसका 1/8 हमको रिड्यूस करना है, राइट ऑफ करना है. ठीक है. देन एडजस्टमेंट नंबर 4. दिस इज एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डियर स्टूडेंट्स. A part of furniture rupees 5,000 is purchased on 1st October 2018. This has been given. यानी फर्नीचर में से एक फर्नीचर है, पार्ट ऑफ फर्नीचर जो है 5,000 का, वो आपने कब परचेज किया है? सो यू हैव परचेज्ड इट ऑन 1st October 2018 को परचेज किया है. जरा देखते हैं फर्नीचर कितना है. सो देखो इधर फर्नीचर कितना दिख रहा है हमें. सो हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर दैट वी कैन सी? फर्नीचर इज 13,000. बराबर है. 13,000 का फर्नीचर है. तो ये लोग ये बोलना चाहते हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं? देखो यहाँ पे 13,000 का फर्नीचर है. ये बैलेंस शीट का, ये ट्रायल बैलेंस का डेट कौन सा है? 31 मार्च का डेट है. इज दैट क्लियर? तो 31 मार्च के दिन हमारे पास 13,000 का फर्नीचर है, ऐसा दिख रहा है. अब ये फर्नीचर कब खरीदा है? देखो 1st October 2018. 1st October 2018 मतलब फर्नीचर पहले खरीदा था, मार्च से पहले. ओके. Yes. क्या करते हैं स्टूडेंट गलती करते हैं. 13,000 का फर्नीचर हमारे पास है, ऐसा बोलते हैं 13 का फर्नीचर है और हमने 5 का फर्नीचर खरीदा, तो 5 उसमें ऐड कर देते हैं और बोलते हैं टोटल फर्नीचर 18,000 का है. दिस विल बी रॉन्ग डियर स्टूडेंट्स. आपको ऐड नहीं करना है. आपको ये याद रखना है जब भी ऐसा आया कि देयर इज अ फर्नीचर ऑफ 5,000 परचेज्ड ऑन 1st October, यानी आपके ट्रायल बैलेंस के डेट से पहले अगर फर्नीचर खरीदा, ऐसा कभी भी मेंशन होके आया, so you have to remember in this part आपका फर्नीचर ऑलरेडी 13,000 में एडेड रहेगा. so you don't have to add it once again. याद रखना, यानी 13,000 में आपको 5,000 ऐड करके 18 नहीं करना है. 13,000 में ऑलरेडी 5,000 क्या रहेगा? एडेड रहेगा. ये जस्ट अपने को एक इंफॉर्मेशन के लिए दिया है. ये किसके लिए दिया है? आपको कुछ एंट्री नहीं करना है. दिस इज एन इंफॉर्मेशन. क्योंकि आपने फर्नीचर कब खरीदा? 1st October को, और आपने ट्रायल बैलेंस कब बनाया? 31 मार्च को. तो अगर 1st October को 2018 को फर्नीचर खरीदा और 31 मार्च 2019 को अगर ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, तो 31 मार्च 2019 के दिन ये फर्नीचर तो इसमें आ गया रहेगा कि नहीं?
बराबर. So dear students, this 13,000 already includes 5,000 का furniture, so you don't have to add it separately. ये याद रखना पहला point. फिर ये information अपने को दिया क्यों है? So dear students, this kind of information, फर्नीचर कब खरीदा, ये information अपने को इसीलिए दिया है ताकि हम हमारा depreciation कैलकुलेट करते समय we will be carefully calculating the depreciation. So this information is to be used at the time of calculation of depreciation. ये याद रखो. So अभी इस इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है. तो एक गलती मैंने बताया जो स्टूडेंट्स करते हैं वो आपको नहीं करना है. जब भी ऐसा एडजस्टमेंट आया आप जाके फर्नीचर को टिक मार करके उसमें ऐड मत कर देना. फर्नीचर में ऑलरेडी 5,000 एडेड रहेगा. और वो क्यों, मैंने आपको उसका रीजन बताया. आपने फर्नीचर अक्टूबर को खरीदा 2018 को, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया 31 मार्च को, तो जब 31 मार्च 2019 को ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो ऑलरेडी उसमें फर्नीचर आ चुका होगा. I hope this is clear. So 13,000 includes 5,000, so no need of adding that. But this information is useful for the purpose of calculation of depreciation. So while calculating depreciation on furniture, we will be looking into how the things will be, how we will be calculating the depreciation then. ठीक है, तो तभी देखते हैं. तो नेक्स्ट ये एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन. इसके ऊपर कैलकुलेट करना लैंड एंड बिल्डिंग. सो आई एम पुटिंग अ टिक मार्क ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है एंड फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना है. लेकिन फर्नीचर को डेप्रिशिएट करते समय एक स्टार भी डाल रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन भी है. तो डेप्रिसिएशन करते समय वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग फर्नीचर का डेप्रिसिएशन. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा आपको एडजस्टमेंट पता है आउटस्टैंडिंग का. हम ऐड करेंगे वेजेस में और ऐड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में. ओके, एंड लायबिलिटीज है. वेजेस को टिक कर रहा हूं एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को टिक कर रहा हूं. एंड लास्ट एडजस्टमेंट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 3%. सो यू हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 3%. आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करते हो. एंड व्हाट आर द टू इफेक्ट्स. हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है बिकॉज द फर्म हैव टू पे. सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा. दैट विल बी द फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बना रहे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. दिस विल बी द टू इफेक्ट्स एज फार एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसर्न. और 3% कैपिटल के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे. क्लियर विद दिस स्टफ. सो दिस इज द क्वेश्चन दे हैव गिवन एंड वी हैव टू आंसर दैट. सो चलो लेट्स स्टार्ट recording the transactions. First we have opening stock. Okay, so opening stock 8,560. so that is the opening stock that we have 8,560. चलो opening stock हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं. टू opening stock. $8,560. That's your opening stock. ठीक है. ओपनिंग स्टॉक के बाद यू हैव पेटेंट्स. यू हैव अ टिक मार्क ऑन पेटेंट्स. 2000 का पेटेंट्स है, एसेट्स में जाएगा. सो पेटेंट्स आई एम गोइंग टू टेक इट टू एसेट साइड. पेटेंट्स 2000 आई एम राइटिंग इट इन द इनर कॉलम. और इनर कॉलम में लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. क्लियर. चलो उसके बाद पेटेंट्स के बाद नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज सन्ड्री डेटर्स. अगेन सन्ड्री डेटर्स पे एक टिक मार्क है. सो सन्ड्री डेटर 18,500. इट हैज गॉट अ टिक मार्क. सो आई एम राइटिंग सन्ड्री डेटर्स 18,500. डेटर्स को मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं. 18,500 and it has got a tick mark. So एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. I hope this is clear. Then after debtors, the next thing that we have is just a sec. The next thing that we are going to write after debtors is stock of stationery.
अब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या करते हैं हम, दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये हम स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ऐड करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज एडेड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको सेपरेटली जाके पीएनएल अकाउंट में लिख रहा हूं एज स्टेशनरी का स्टॉक। सो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000 का है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट इन पीएनएल अकाउंट टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सो डियर, अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता तो उसमें ये स्टॉक जाके हम ऐड करते। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं है तो आई एम गोइंग टू सेपरेटली राइट दिस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंडिचर है। सो जो भी स्टॉक स्टेशनरी का अपने पास है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बोल के आएगा, 3000 का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। This is opening stock of stationery and it will be considered as an expense during the year. Okay. Then we have trademarks. Trademarks asset side में जाएगा, 2000 का trademarks है. Then intangible assets. So trademarks 2000 I'm going to write it in the outer column. ठीक है. Trademarks के बाद next thing जो है वो है bills receivable, again assets 6300. So bills receivable asset side में 6300. Then bills receivable के बाद next item कौन सा है? So next item is electricity charges. It has got a tick mark. P&L account में लिखेंगे 1450 to electricity. $1450. Let me once again check the amount. 1450 अमाउंट है उसका। आई होप दिस इज क्लियर। और एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ करता हूं, जस्ट अ सेक। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वी हैव वेजेस 950 ट्रेडिंग अकाउंट में। सो वेजेस लिखना है, लेकिन मैं परचेसेस के लिए जगह रख रहा हूं और उसके बाद मैं लिखता हूं टू वेजेस। इनर कॉलम में लिखना है 950 का वेजेस है, क्योंकि एक सिंगल टिक मार्क है उसके ऊपर। सो 950 इज द वेजेस का अमाउंट एंड टिक मार्क है, इसीलिए मैं एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, उसके बाद व्हाट वी हैव आफ्टर वेजेस। वेजेस के बाद हमारे पास है हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 1000 आउटर कॉलम। सो टू हीटिंग एंड लाइटिंग। $1000 आउटर कॉलम में हीटिंग एंड लाइटिंग आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। देन हीटिंग एंड लाइटिंग पर ट्रेड एक्सपेंसेस है। ट्रेड एक्सपेंसेस पीएनएल में आएगा 850 का। सो ट्रेड एक्सपेंसेस हम पीएनएल में लिख रहे हैं 850 टू ट्रेड एक्सपेंसेस। देन ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट आइटम जो है दैट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम सेल्स से लेस करेंगे। सेल्स का वैल्यू कितना है 30,200 का, उसमें से हमें रिटर्न्स माइनस करना है 400 का। सेल्स के ऊपर एक सिंगल ही टिक मार्क है, तो चलो क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय सेल्स 30,200 का सेल्स है। सो आई एम राइटिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स। एक सिंगल टिक मार्क है तो एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ करना है और उसमें से रिटर्न्स माइनस करना है, लेस रिटर्न्स। रिटर्न्स लेस करना है, कितने का रिटर्न्स का वैल्यू है 400। सो 400 का रिटर्न्स लेस करते हैं एंड ये 400 का रिटर्न्स लेस किया तो कितना आएगा। सो सन्ड्री डेटर्स में से 30,200 में से अगर आप 400 लेस करोगे तो दैट विल बी 29,800। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, उसके बाद सेल्स रिटर्न के बाद लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग इज 22,000। एसेट साइड में जाके हम लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे 22,000 का।
लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 आउटर कॉलम है, उसके ऊपर टिक मार्क नहीं है, सो आई एम स्ट्रेट अवे राइटिंग इट इन द आउटर कॉलम. 22,000 ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है. लैंड एंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है फर्नीचर. फर्नीचर के ऊपर एक टिक मार्क है और एक इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखना है. 13,000 का फर्नीचर है, सो आई एम राइटिंग इट इन द इनर कॉलम. लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क नहीं है ना, कि है सर. So I am writing land and building in the inner column and furniture 13,000, that also I am writing it in the inner column. ठीक है. So land and building को मैं inner column में लिख रहा हूँ 22,000. फर्नीचर एक लाइन छोड़ के फर्नीचर लिख रहा हूँ. ओके. इनर कॉलम में फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया था उन्होंने, सो दे हैव गिवन फर्नीचर 13,000. ठीक है. सो फर्नीचर भी लिख रहा हूँ 13,000 का फर्नीचर. आई होप दिस इज क्लियर. और दोनों के ऊपर टिक मार्क है. सो यहाँ पे भी एक सिंगल लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे भी एक सिंगल लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन. आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके. देन आफ्टर फर्नीचर वी हैव cash at bank 5,000 and investment 7,500. both are assets. So cash at bank 5,000 and investment 7,500. both are your assets. So I'm writing cash at bank. $5,000 आउटर कॉलम एंड इन्वेस्टमेंट में लिख रहा हूं. इन्वेस्टमेंट के लिए इधर जगह है तो मैं इधर ही लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट्स 7,500. both are assets. So both I have written it on the asset side. ठीक है. इन्वेस्टमेंट्स के बाद नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स. नाउ डियर स्टूडेंट, ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा 1,200 and 900. सो ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ड्रॉइंग्स 1,200 and 900. आई होप दिस मच इज क्लियर. ठीक है. देन ड्रॉइंग्स के बाद नेक्स्ट है बैड डेट्स. बैड डेट्स के ऊपर 2 टिक मार्क है. सो डियर 2 टिक मार्क होने के बावजूद में मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं बैड डेट्स का. इज दैट क्लियर? सो आई एम राइटिंग फुल फॉर्मूला फॉर बैड डेट्स. सो बैड डेट्स पीएनएल में लिखूंगा. बैड डेट्स का वैल्यू 200 का है. सो आई एम राइटिंग 2 बैड डेट्स. फिर हमारा फॉर्मूला क्या है? एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी एंड एक लाइन छोड़ना है टोटल के लिए. देन लेस ओल्ड आरडीडी. दिस इज आवर फॉर्मूला. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. सो अकॉर्डिंगली लाइन ड्रॉ करते हैं. चलो यहाँ पे एक टोटल होगा, ऐड का टोटल हम करेंगे. फिर जिसका टोटल आएगा उसमें से हम जितना टोटल आएगा उसमें से हम लेस ओल्ड आईडीडी करेंगे एंड विल बी टेकिंग द अमाउंट टू द आउटर कॉलम. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बैड डेट्स दैट वी नो हाउ टू राइट. देन वी हैव परचेसेस. चलो परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. एक टिक मार्क है. 23,700 का परचेसेस है. सो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस के लिए हमने जगह रखा है. सो वी आर राइटिंग परचेसेस. 2 परचेसेस 23,700 का परचेसेस है एंड इट हैज गॉट अ टिक मार्क. सो हम एक लाइन छोड़ के वी विल बी ड्राइंग अ लाइन. I hope this is clear. ठीक है. So this is the debit side of your trial balance. Let's move on to the credit side. Credit side capital account. Archana and Prerna capital account will be partners capital account credit side 40,000 and 20,000. So partners capital account के credit side में by balance brought down 40,000 and 20,000. I hope this much is clear. Then after partners capital account we have other loans. Other loans are liabilities. 3,000 का loans है, so I'm going to write it on the liability side. ऊपर जगह रख रहा हूँ capital account लिखने के लिए. Other loans.
एंड अदर लोन्स का वैल्यू कितने का है, आउटर कॉलम में अदर लोन्स हमें लिखना है. द वैल्यू ऑफ अदर लोन्स इज 3000, सो वी आर गोइंग टू राइट इट इन द आउटर कॉलम 3000 अदर लोन्स का वैल्यू. आई होप दिस मच इज क्लियर. देन आफ्टर अदर लोन्स वी हैव रिजर्व फंड. रिजर्व फंड इज अगेन लायबिलिटी. 1000 का रिजर्व फंड है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द लायबिलिटी साइड. रिजर्व फंड कैपिटल के नीचे लिखना होता है, तो DSO आई एम राइटिंग रिजर्व फंड ओवर हियर. $1,500 था. let us check the amount. Sorry, 1000 का अमाउंट है, तो रिजर्व फंड इज 1000. आई एम गोइंग टू करेक्ट दैट एंड आई एम गोइंग टू राइट 1000. देन वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स 17500. ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 17500. दिस अमाउंट आई एम करेक्टिंग एंड आई एम राइटिंग इट 1000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 17500. सो क्रेडिटर्स outer column 17500. I hope this is clear. Okay, then after creditors we have after creditors we have, just a second. Now after creditors we have next item, that is bills payable 5000. So bills payable liability 5000. ठीक है, बिल्स पेएबल के बाद नेक्स्ट आइटम जो है दैट इज परचेस रिटर्न. वी विल बी डिडक्टिंग इट फ्रॉम परचेसेस. 1000 का परचेस रिटर्न है, सो परचेस में से हम लेस करते हैं, लेस रिटर्न्स 1000 एंड 1000 का रिटर्न लेस करने का आउटर कॉलम में आएगा 22,700. आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके, देन ओल्ड RDD 500 का बैड डेट्स के फॉर्मूला में लेस करना है. सो बैड डेट्स के फॉर्मूला में ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, लेस 500 करते हैं. ठीक है, जब टोटल आएगा हम उसमें से डिडक्ट कर लेंगे 500 का अमाउंट. देन वी हैव सेल्स. वी हैव ऑलरेडी रिटर्न सेल्स 30,200 और 400 का रिटर्न्स माइनस करके आउटर कॉलम में वैल्यू भी डाला है. हमारा सेल्स का एंट्री हो चुका है. एंड फाइनली वी हैव इंटरेस्ट का एंट्री 310 का इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट P&L के क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय इंटरेस्ट आउटर कॉलम 310. I hope this is clear. Okay, so we have done with entering the trial balance के items and now we are moving on to adjustments. Adjustment में सबसे पहले adjustment, stock on 31st March 2019 is valued at cost price 12,000 and market price 17,000. What we are going to take is the cost price, that is 12,000. बराबर है? Which very slow. कॉस्ट प्राइस लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000. ठीक है, एंड द सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक outer column 12,000. I hope this is clear. Okay, then after closing stock we have one customer, Mr. Shekhar, failed to pay his due. Customer is debtor, and if the debtor failed to pay his due, then we have seen ki it is a bad debt, new bad debt for the company. So new bad debt, we for the firm we will be deducting it from debtors. चलो, so let's deduct it from debtors first. New bad debt का value 800 का है, so less new bad debts. $800. Okay, so we will be deducting 800 from 18,500 less 800, so that will be 18,500 में से हम 800 लेस करेंगे, that will be 17,700. I hope this is clear. This is first effect of new bad debt. Second effect will be
एडिंग न्यू बैड डेट्स इन द फॉर्मूला। 800 का न्यू बैड डेट्स हम फॉर्मूला में ऐड करते हैं, और अगर आप पूरा सम देखोगे तो वी डोंट हैव न्यू सम, तो न्यू आरडी विल बी डैश, तो हम टोटल कर लेते हैं। सो टोटल विल बी 1000, वी डोंट हैव एनी न्यू आरडीडी, एंड 1000 का टोटल आएगा, उसमें से हम ओल्ड आरडीडी लेस करके आउटर कॉलम में 500. So the bad debts figure will be 500. New RDD we don't have, so we are putting a tick mark. We are putting a dash as far as new RDD is concerned. Okay. So this is done with the. So we have done with the formula of bad debts. Then 1/8 of the patents are to be written off. Now dear student, 1/8 of the patents are to be written off. Written off का मतलब depreciation की तरह effect देना है। तो चलो हम लोग patents में जाके depreciation जैसा less करते हैं, वैसे ही पेटेंट्स में हम राइट ऑफ करेंगे। सो लेस, बट इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन आई एम गोइंग टू राइट रिटर्न ऑफ। ओके, एंड कितना रिटर्न ऑफ करने बोला है, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1/8, 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव टू कैलकुलेट दिस 1/8 का वैल्यू। नॉर्मली डेप्रिसिएशन परसेंटेज में देते हैं ना, तो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे 20% बोलेंगे तो हम 20%, 30% कैलकुलेट करते हैं, बट हियर द वैल्यू इज गिवन एज 1/8, तो विल बी कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स। या राइट ऑफ पेटेंट्स का फिगर, सो द फिगर विल बी कैलकुलेटेड एज 2000 into they have asked us to write off 1/8, so 1/8, तो यहाँ पे कभी 100 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट अवे दे हैव आस्क्ड अस टू डिवाइड इट विद 1/8। तो चलो 8 को डिवाइड करते हैं, 2000 डिवाइड बाय 8 करो, एंड द आंसर विल बी कितना आएगा, 8 2 जा 16, 4 कैरी, 5 जा 40 and 0, so the answer is going to be 250. I hope this is clear. So 250 is the value of patents that we are going to write off. ठीक है, चलो, so ब्रैकेट में 250 and 250 लेस करने के बाद this will be 1750. I hope this is clear. एंड डेप्रिसिएशन की तरह ही इसका सेकेंड इफेक्ट हम लेके जाएंगे पीएनएल में। पीएनएल में हम लिखेंगे 2 पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, 2 पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। आई होप दिस इज क्लियर। आउटर कॉलम में आई एम राइटिंग 250. 250 इज द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स दैट वी हैव रिटर्न ऑफ। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, we have a part of furniture of ₹5,000 is purchased on 1st October. अब यहाँ पे मैंने बोला है ये फर्नीचर का पार्ट जो 1st October को खरीदा है, इसका हमें कोई एंट्री नहीं करना है, बट दिस इज एन इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूजिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में देखते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज 10% एंड ऑन फर्नीचर इज 5%। चलो लैंड एंड बिल्डिंग को पहले डेप्रिशिएट करते हैं 10%। सो लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, एंड ये 10% कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक जीरो कम कर दिया तो 10% का वैल्यू आता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, 2200 इज योर 10%। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो 10% कैलकुलेट करना बहुत इजी है। तो 22,000 में से 2,200 हम डिडक्ट करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ 19,800। सो दैट्स गोइंग टू बी योर लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग के साथ साथ हम फर्नीचर भी डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ताकि दोनों डेप्रिसिएशन का हम सेकंड इफेक्ट लेके जा सके। इज दैट क्लियर? तो देखो फर्नीचर को डेप्रिसिएशन कितना बोला है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, बराबर है। सो नॉर्मली आप क्या कर देते हो, नॉर्मली एक स्टूडेंट क्या करेगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैसे कैलकुलेट करेगा,
सो फर्नीचर का वैल्यू उन्होंने दिया है, क्लोजिंग वैल्यू दिया है फर्नीचर का 13,000, बराबर है। तो एक स्टूडेंट 5% कैसे कैलकुलेट करेगा? तो 13,000 का फर्नीचर के ऊपर he will be calculating 5% as 5/100, बराबर है नॉर्मल केस पे। So 20 और 20 cancel, so this will be like 13 5s are 65 or 0. So he will be saying कि depreciation 650 का है, okay? So he will be writing depreciation 650. Normally 650 depreciation लिख के हम लोग डिडक्ट कर लेंगे, लेकिन ये सब में 650 अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे 13,000 पे, so that will be wrong depreciation. This is wrong. And why this is wrong? 650 is a wrong figure because of one information that they have given. आपने पूरा 13,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का निकाला, लेकिन उन्होंने एक इंफॉर्मेशन अपने को दिया था। एंड व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? सो वो इंफॉर्मेशन अब काम आएगा। द इंफॉर्मेशन सेज a part of furniture of 5,000 is purchased on 1st October 2018. तो फर्नीचर में से एक पार्ट 5,000 का 1 अक्टूबर को खरीदा है। उसका मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय ऐसे डायरेक्टली डेप्रिसिएट नहीं कैलकुलेशन करना है। दिस विल बी रॉन्ग डेप्रिसिएशन। सो हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, उसके हम नीचे वर्किंग नोट करते हैं। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर so depreciation on furniture. Furniture is of total value 13,000 that is given to us. Now what they have said, उसमें से furniture of the value 5,000 is purchased on, so 5,000 का furniture जो है that is purchased on 1st October 2018. Is that clear? So furniture of the value 5,000 is purchased on 1st October 2018. उसका मतलब 13 में से अगर 5,000 का फर्नीचर आपने 1st अक्टूबर को खरीदा है, तो उसका मतलब होता है 7,000 का फर्नीचर जो है वो आपका स्टार्टिंग से है। स्टार्टिंग मतलब दिस विल बी ओपनिंग फर्नीचर फॉर यू, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। ओके, so this is what it means. That means the furniture of the value 13,000 will be divided into two parts. 7,000 का फर्नीचर is the opening balance of furniture that you have, and 5,000 का फर्नीचर जो है वो आपने during the year उसमें add किया है। So we have two furnitures. One is right from the beginning, and one furniture you have purchased during the year on 1st October. So accordingly depreciation will be calculated. So let's see how depreciation will be calculated then. So ये जो पहला 7,000 है उसके ऊपर depreciation जो है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 7,000 का। सर हाँ बोलिए। 5,000 प्लस 8,000 आएगा। अच्छा 12 नहीं है ना, सॉरी। So this will be 8,000 dear students. मैंने 12 सोच के माइनस किया था। So depreciation on furniture, depreciation on furniture कैलकुलेट करने के लिए 13,000 का फर्नीचर है, 5,000 का फर्नीचर भी परचेज ऑन 1st October 2018। उसका मतलब 8,000 का फर्नीचर जो है वो अपने पास ओपनिंग से है, तो दैट इज ओपनिंग बैलेंस फॉर अस। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर twice, and that too for different months. So how will you calculate the depreciation का furniture for different months? So opening balance 8,000 का है, उसके ऊपर आप depreciation calculate करोगे 5%, that is 5/100, and again आपने addition किया है, this is called as additional furniture. So आपने additions किया है furniture के लिए, and that addition is done on 1st October 2018, that is rupees 5,000. So इसके ऊपर भी आप डेप्रिसिएशन 5% ही कैलकुलेट करोगे, लेकिन जो 5% ये एडिशन के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, दैट यू विल बी कैलकुलेटिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो आपका डेप्रिसिएशन कब से कैलकुलेट होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ओके, सो डेप्रिसिएशन अक्टूबर में आपने खरीदा, अक्टूबर से मार्च ईयर एंडिंग है, सो अक्टूबर से मार्च कितना मंथ हो रहा है?
6. So depreciation on this 6 marks. will be calculated only for 6 months, यानी वो आएगा 6/12. ओके, 12. ये जो है ओपनिंग बैलेंस ये आपके पास स्टार्टिंग से है. सो हियर यू डोंट हैव टू राइट एनी मंथ्स. एग्जैक्टली, क्योंकि पूरे साल का है. तो आप अगर लिख भी लो ना तो आप कैसे लिखोगे? पूरे साल का मतलब 12/12 लिखोगे, लेकिन 12/12 तो कैंसिल होके 1 ही आएगा. सो नो नीड ऑफ राइटिंग एनी मंथ्स. आई होप दिस इज क्लियर. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. सो चलो लेट्स कैलकुलेट. 5,000 के 8,000 के ऊपर 5% विल बी 8 5 are 40. So this will be 400. And यहाँ पे 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल. 6 1s are 6 2s are 2 1 250. 225 are बराबर है. 25 into 5 कितना आएगा? 125. I hope this is clear. So 125 plus 400. So your total depreciation will be 525. I hope this is clear. Understood all of you? How to calculate depreciation on furniture? So depreciation on furniture in this sum is going to be 525. A clear with this? सबको समझा? Yes, sir. Yes, sir. पहले हम Yes, कैलकुलेट कर रहे थे. हम कितना कैलकुलेट कर रहे थे? 650 कैलकुलेट किया था. डायरेक्टली 13 पे किया था. एग्जैक्टली पे नहीं करना है, 8 पे अलग से करना है और 5 पे अलग से करना है. ओके, सो व्हेनेवर द एडजस्टमेंट कम्स एज फर्नीचर इज परचेज, so this is the way you have to do. So चलो let us write down depreciation. लिख रहा हूं. 13,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन जो कि हमने कैलकुलेट किया है वो 8,000 के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है 400 का, और हमने दूसरा 5,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 125 का. टोटल डेप्रिसिएशन दैट वी हैव कैलकुलेटेड इज 525. So let us deduct 13,000 से 525. So 13,000 minus 525. So we are going to arrive at the value of कितना आएगा? 12,475 is going to be your value after deducting depreciation. I hope this is clear. Understood? चलो दोनों भी depreciation. yes, sir. सेकेंड इफेक्ट हम लेके जाते हैं पीएनएल अकाउंट में. सो पीएनएल अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन. Can you see the screen, students? Yes, sir. Because मेरा हैंग हो गया है. It is not allowing me to write. मुझे यहाँ पे लिखना है लेकिन वो कर्सर वहां पे जा ही नहीं रहा है लिखने के लिए. सो हैंग हो चुका है वो. What I'm going to do is I'm going to write the things. ठीक है? So instead of typing, I'm going to write. To depreciation. So we have calculated depreciation on building, land and building. So depreciation on land and building we have calculated as 2,200. Inner column में लिख रहा हूँ. And next depreciation we have calculated is for furniture. Furniture के ऊपर we have calculated depreciation as 525. So total depreciation that we have calculated is 2,725. I hope this is clear. So this is a second effect for depreciation. ठीक है? Then dear students, after depreciation,
The next adjustment that we are going to do is outstanding expenses. May wages 300 hai and electricity charges 200. So I'm going to add it to wages. So wages may add. So wages is the trading account. Mein I'm going to add outstanding. So wages का outstanding कितना दिया है 300. So I'm going to add 300. So 950 में 300 add करेंगे. So that will be 950 plus 300 and that's going to be 1250. Clear? So that is going to be your wages का figure. And दूसरा add करना है 200 electricity charges में. Electricity charges P&L में है. So add outstanding. $200. So 200 add करने के बाद the figure is going to be 1650. I hope this is clear. And the second effect for this both will go to liability side. Outstanding expenses का second effect liability side में जाएगा. So liability side में I'm writing outstanding. Underline कर रहा हूं. आउटस्टैंडिंग में पहला वेजेस है एंड फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है. आउटस्टैंडिंग वेजेस इज 300, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज 200. सो टोटल इज 500. आई होप दिस इज क्लियर. देन यू हैव इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल 3%. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेट अस कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करता है. अर्चना का कैपिटल 40,000 है, प्रेरणा का कैपिटल 20,000 है. तो लेट अस डू एन एडजस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3%. इज दैट क्लियर? चलो, अर्चना and Prerna are the two partners that you have. Archana ka capital is 40,000, Prerna ka capital is 20,000, and the interest that is to be provided is 3%. तो 3% कैसे कैलकुलेट करोगे? 3/100. अर्चना के कैपिटल के ऊपर 3/100, प्रेरणा के कैपिटल के ऊपर में भी 3/100. So ये 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 4 3 are 12. ओके, और ये 2 0 है, दिस विल बी 1200. और यहाँ पे भी ये 0 0 कैंसल एंड 3 2 is 6 और वो 2. So the interest on capital is 1200 and 600. I hope this is clear. Okay, so let's take that interest on capital. Interest on capital का first effect किधर आता है? Interest on capital का first effect profit and loss के डेबिट में आएगा. to profit and loss on debit side. Interest on capital. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहला पार्टनर है अर्चना एंड देन प्रेरणा. For Archana, the interest on capital that we have calculated is 1,200. For Prerna, the interest on capital that we have calculated is कितना? 600. 600. For Prerna, we have 600. So the total interest on capital is going to be 1,800. ये फर्स्ट इफेक्ट है. सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कहाँ पे आएगा बोलो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में. Debit side. Credit side. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Archana 1,200 and Prerna 600. I hope this is clear. Understood all of you? Yes. Then we have done with this thing. चलो, तो फाइनली टोटल खाली बाकी है. क्लोज करते हैं हम हमारे अकाउंट को. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्लोज करेंगे. चलो टोटल करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का. क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है. क्रेडिट साइड का पहला टोटल करते हैं. सो इट इज 12,000 प्लस 29,800. So that's going to be, the total is going to be
41,800. 41,800. So the same total I'm going to write Mobile. debit side 41,800. So डेबिट के वैल्यू का टोटल करते हैं. So डेबिट का टोटल 8,560 प्लस 22,700 प्लस 1,250 प्लस 1,000. So the total of debit is going to be, यहाँ पे लिख रहा हूं 33,510 and the total of credit is 41,800. So 41,800 में से 33,510 को हमको लेस करना है. So चलो डिडक्ट करते हैं. So 0, ये 10, 8,230. 9, 7 में से 5 गया 2, then again this will be 11, 11 में से 3 गया 8 and ये 3 में से 3 गया 0. So the figure is going to be 8,290. इसके ऊपर सर्कल करना है, बैलेंसिंग फिगर है. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज 2 gross profit. This is going to be written as 2 gross profit carried down. I hope this is clear. बराबर है. चलो, सो ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रॉट डाउन करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट हम कहां पे ब्रॉट डाउन करते हैं? हम पीएनएल में ब्रॉट डाउन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट brought down. So on the credit side we are going to write 8,290. I hope this is clear. चलो, then 8,290 और 310 को हमें ऐड करना है. क्रेडिट साइड ही बड़ा दिख रहा है. So 8,290 में 310 को ऐड करते हैं. So the total is going to be 8,600. ये आपका पीएनएल का टोटल आ रहा है 8,600. यही टोटल मैं डेबिट में भी लिख रहा हूं 8,600. लेकिन डेबिट का टोटल बड़ा है क्या, वो हमें चेक करना पड़ेगा. सो लेट अस चेक डेबिट साइड का टोटल वंस अगेन. सो डेबिट का टोटल देखो 3,000 प्लस 1,650 प्लस 850 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 2,725 प्लस 1,800. So that's going to be डेबिट का टोटल कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट? डेबिट का टोटल इज 10,775. डेबिट का टोटल 10,775 आ रहा है और क्रेडिट का टोटल 8,600 है. तो ये सब में किसका टोटल बड़ा है डियर स्टूडेंट्स? डेबिट साइड का टोटल. डेबिट. ओके, नॉर्मली हम लोग को क्रेडिट का टोटल बड़ा रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट का ही टोटल लिखा था. लेकिन जब डेबिट का टोटल करने के बाद हमें ये पता चला कि डेबिट का टोटल बड़ा है, तो हमें जाके टोटल को पहला चेंज करना पड़ेगा. सो लेट मी चेंज द टोटल. जाके पहले रब कर लेते हैं. यहां पे टोटल चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स. सो आई एम गोइंग टू चेंज द टोटल. आई एम गोइंग टू राइट द टोटल ऑफ डेबिट साइड. चलो, 10,775 क्लियर. एंड यही टोटल मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं 10,775. एंड क्रेडिट का टोटल था 8,600 का ना. सो 8,600 उसमें से लेस करेंगे. सो डियर क्रेडिट साइड को लेस करना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट का टोटल छोटा है. सो 2,175. 2,175. Now this is your नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है? यहाँ पे कहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा? अगर डेबिट साइड बड़ा है तो बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. बराबर है. बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगा बिकॉज डेबिट जो साइड बड़ा रहता है मैथमेटिकली बैलेंसिंग फिगर उसका ऑपोजिट साइड में आता है. सो दिस इज गोइंग टू बी 2,175. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, एंड ये नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है? So this will be called Net loss. net loss. So by net loss, बराबर है, carried down. We have net loss in this sum.
क्लियर? एंड नेट लॉस को भी हमें पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, सो वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग 2 पार्टनर्स, अर्चना एंड सेकंड पार्टनर प्रेरणा, ठीक है? और दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करके 2175 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, नेट लॉस। सो नेट लॉस वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अर्चना को पहले एंड देन प्रेरणा को। इज दैट क्लियर? So net loss is 2175. That is your net loss. And yes, sir, we have to distribute them in the profit sharing ratio. So let us check what is the profit sharing ratio for them. Profit sharing ratio 2:1. बराबर है ना? Profit sharing ratio is given to us as 2:1. So चलो 2:1 is the profit sharing ratio. So accordingly we will be dividing it among, इसलिए उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं, लेकिन लॉस भी वही रेशियो में शेयर होता है। तो 2:1 मतलब यहाँ पे जाएगा 2/3, याद है ना, हम टोटल लेते हैं, और प्रेरणा के लिए जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व कैसा करते हैं बोला मैंने, पहले हम 3 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करना होता है 3 से, सो विल बी डिवाइडिंग 2175 by 3। सो लेट अस डिवाइड इट। 3 1s 725. 3 7s 21, 3 2s 6 and 3 5s 15, बराबर है 725। सो ये भी 3 से डिवाइड हुआ, ये भी 3 से, दोनों को पहले डिवाइड करके रख देता है, तो यहाँ पे भी 725 आएगा। लेकिन यहाँ पे 725 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 725 into 2 करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 5s 10, 1450. 4 plus 1 5 and 7 2s 14, so 1450। Is that clear? और यहाँ पे 725 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 725 ही आएगा, और ये दोनों का ऐड करोगे तो 2175 आएगा, क्योंकि 2175 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो दोनों का टोटल भी उतना ही आने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। सो वन पार्टनर इज गोइंग टू गेट 1450 and another partner is going to get 725. So 725. will be distributed among 2 partners. ये नेट लॉस क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा बोलो, Credit side डेबिट में partners. आएगा। क्रेडिट में आया तो सेकंड इफेक्ट डेबिट में आएगा, तो डेबिट में हम लिखते हैं 2 नेट लॉस ब्रॉट डाउन। चलो नेट लॉस ब्रॉट डाउन करते हैं। So for Archana, the net loss that we have distributed is 1450, and for Prerna, the net loss that is distributed is 725. I hope this is clear. Okay. Accordingly, let us close partners capital account. Archana और प्रेरणा का पहले टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ही बड़ा दिख रहा है, देखो, तो दोनों का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे 40,000 और 1,200 will be 41,200, and यहाँ पे 20,000 plus 600 is going to be 20,600. 20,600. I hope this is clear. यही टोटल हम डेबिट में लिख रहे हैं, 41,200 and 20,600. So we are going to write the same total on the debit sides as well. ठीक है, फिर डेबिट का टोटल हम कर लेते हैं और फिर यहां से माइनस करते, तो एक एक पार्टनर का करते हैं। पहले अर्चना के डेबिट का टोटल करते हैं, ठीक है। तो अर्चना के डेबिट का टोटल करते हैं। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है डेबिट साइड का, 1050. तो डेबिट साइड का टोटल इज गोइंग टू बी 2,650, बराबर। और क्रेडिट का टोटल कितना है अर्चना का, 41,200, तो 41,200 में से 2,650 को लेस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द बैलेंस। सो 41,200 में से 2,650 को लेस करो तो कितना आ रहा है, that is going to be 38,550. So balancing figure is 38,550. That's going to be your balancing figure as far as Archana is concerned. Okay, this is Archana ka balancing figure.
देन प्रेरणा के लिए भी यही कैलकुलेशन करना है। प्रेरणा के डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? सो प्रेरणा 1625. 1625. So for Prerna, debit का total is equals to 1625 और क्रेडिट का टोटल कितना है? 20,600। तो 20,600 में से 1,625 को हमें लेस करना है। तो चलो लेस करते हैं। 20,600 माइनस 18,975. 25. So this is going to be 975. 18,075. So that is going to be your balancing figure 18,975. इसके ऊपर भी हम सर्कल करेंगे, ठीक है। ये प्रेरणा का बैलेंसिंग फिगर है। और मुझे बताओ डियर स्टूडेंट्स, ये बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या लिखते हैं? तो वी राइट इट एज टू बैलेंस कैरिड डाउन, बराबर है। और ये बैलेंस को हम कहाँ पे कैरिड डाउन करते हैं? हम ये बैलेंस को लेके आके लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। चलो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला नाम किसका लिखेंगे? अर्चना का। एंड देन प्रेरणा, अर्चना का कैपिटल इज 38,550 एंड प्रेरणा का कैपिटल इज 18,975. ओके, चलो लेट अस ऐड बोथ. So the total capital for both is going to be 57,525. Exactly. चलो अब हम काम करते हैं, फाइनल टोटल करते हैं। पहले लायबिलिटी साइड का फाइनल टोटल करेंगे। So 57,525 plus 1,000 plus 3,000 plus 17,500 plus 5,000 plus 500. So what is going to be the total for liability side? Is going to be 84,525. Okay. Chalo, let us check the total for asset side. 1750 plus 2,000 plus 19,800 plus 12,475 plus 7,500 plus 17,700 plus 6,300 plus 5,000 plus 12,000, and that's going to be 84,525. डबल लाइन से क्लोज करते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, we can see कि our balance sheet is tallying at 84,525. I hope this is clear for you.